Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Lizanne, the moderator for this conference call. Welcome to the Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco, Emerging Company Reputation Management and Communication Service Provider, to discuss the financial results for Q1 FY23. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touch-tone keypad. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Lizanne. Good evening to all of you, and thanks for joining this conference of Ice Make Refrigeration Limited to present and discuss the financial results for the quarter ended 30th June 2022. Ice Make, as a key player in the industry, is in the forefront in catering to the cooling requirements of various industries. The company serves large number of varied clients and customers by producing innovative cooling and refrigeration solutions to industries like dairy, ice cream, food processing, horticulture, agriculture, pharmaceuticals, cold chain logistics, hospitals, hospitality, and retail, among others. The company has a basket of 50 plus refrigeration and cooling solutions products manufactured under 5 business verticals like cold rooms, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, and ammonia refrigeration. We have mailed the results to you. I hope you have received the same, and we have also uploaded this on our website, icemakeindia.com, and the stock exchanges. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievement from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To discuss the results and address the queries of investors, we have with us the management represented by Mr. Chandrakant Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President, Strategy, and Mr. Ankit Patel, CFO of the company, and other key management from the Ice Make Refrigeration Limited. We will start the call with CMD's remarks, followed by financial highlights of the quarter, business and industry outlook update, and then we will open the floor over to Q&A session. With that said, I will now hand over the call to Mr. Patel. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Chandrakant Patel, CMD of Ice Make Refrigeration Limited, warmly welcome you all to the earnings conference call to discuss the financial result of Q1 FY23. As you may have noted, Ice Make has been able to post strong financial performance driven by strong growth with aggregate demand. The pace of growth recorded in the previous quarter continued in Q1 FY23, with business and economic activity returning to normal. As a result, the demand for all our products has increased as compared to previous year. You may be aware that the company has introduced the first branded solar cold room, Solo Peripheral, including more than 50 of our products already in the market. We are getting strategic initiative and innovative range benefit from that. The company has completed its biggest ammonia-based cold room project of 4,700 metric ton butter cold storage facility on turnkey basis set up in Panchamahal Dairy. The company has also recently
Petrinet with Smart Farm Project and Jeevan Rekha Parishad, a non-profit organization and self-help group in Odisha, installed 10 metric ton solar cold storage, which will help the farmer to increase the shelf life of their produce and helping to prevent spoilage. Glad to inform you that the participation in the 7th ISMAC Dealer Conference held on 4th and 5th August has almost doubled due to increasing demand for the company product. The economy and industrial activity continue to improve, product inquiries and order inflow continue to be good for our product. We remain optimistic about growth in FY23. Moderation in commodity price will help us to improve margin. Further, Mr. Ankit Patel will provide financial detail and Mr. Nikhil Bhatt will give business update. Then we will organize question answer. Thanks. Should we open up for questions? Just wait for a while. Sure. I'm briefing thinking. Good afternoon to all of you. There is strong demand in the end market led by recovery in the economy and industrial activities, which help ISMAC to post strong growth in revenue and profitability. During the quarter, the company's total sales jumped by 100% compared to identical quarter last year. Consolidated revenue in Q1 FY23 stood at 64.85 crore compared to 32.44 crore in previous Q1 FY22. There is significant improvement in company's profitability as against EBITDA loss of 11 lakh in previous Q1 FY22. The company recorded EBITDA of rupees 5.36 crore for the quarter under consideration. Higher revenue, better realization, and control over fixed overhead resulted in strong growth and operating profits. During Q1 FY23, our EBITDA margin stood at 8.26%. During the Q1 FY23, the company posted profit after tax rupees 3.10 crore compared to 83 lakh rupees loss in previous Q1 FY22. In the current quarter, financial cost is managed well. In spite of increasing rate of borrowing, the company is sanguine that it will be able to control finance costs due to strong advances from customer and efficient working capital cycle. We feel that the company may achieve EBITDA percentage maybe in the range of 8 to 9% for the complete financial year FY23. In the beginning of the year, the company estimated top line around 250 crore for the financial year. But if similar momentum continues, we may achieve top line around 75 crore or maybe near to 300 crore. We are looking forward for the same. Thank you. Thank you very much. Over to Mr. Nikhil. Yeah, very good afternoon. I would like to highlight some of the business strategies as well as the global industry outlook. First off, as per the various market reports for the global coal market size and annual rates, what is the compounded CAGR, it will be around 13 to 15% for the next 5 years. The market has benefited significantly from the stringent regulations governing the production and supply of temperature-sensitive products. The industry is poised for the unprecedented growth over the decades due to growing competition, organized retail sector in the emerging economies like ours. Moreover, rising automation in refrigerated warehouses is also projected to boost the demand further. Also, rising consumption of frozen foods in emerging markets such as India, Nepal, Sri Lanka, and various others in Africa, Middle East, etc., where ISMAC is focused on growing its market share.
is particularly driving the frozen food segment. Another significant segment is warehousing, which falls under the chilled segment, are used to store fresh fruits and vegetables, eggs, dry fruits, milk and dehydrated foods, among others. Changing consumer preferences towards ready-to-cook meals due to the rising awareness about the convenience and hygiene will boost the frozen segment growth. Moreover, consumers prefer frozen food owing to the ease of use, terms of packing technique, and support for microwave cooking. This is also likely to play a key role in segment development. I would also like to highlight some strategic priorities for our company in FY23 that will be more focusing on the increasing top line, maintaining margin, ensuring consistent growth at about 25 to 30%, emphasizing geographical expansion of business, and implementing capacity-wise expansion through further capital expenditure in future. Okay, thank you. Now over to we can start now question and answer session. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question may please press star and 1 on your touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Vinay, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hi. Good evening. Congrats on a decent set of numbers. I majorly had 3 questions. The first question would be, I wanted to understand why are we more of moving into lower margin, business with ammonia being a 10% gross margin business, and then the solar segment being more of a tender-driven side of business where the orders come from government. While we have, on the cold room side, we already have a 30%, 28 to 32% on the cold room, and then your industrial and commercial. So what is the objective with regards to going down the line with regards to margins, thereby impacting the business as a whole? So even if your growth is strong, maybe your profitability gets impacted? Hello? Hello, sir. We are not able to hear you. हेलो Yes, sir. Please proceed. एक्चुअली एमोनिया उनके जो 3 सवाल थे उसमें जो फर्स्ट थे एमोनिया बिजनेस जिसका क्रॉस मार्जिन 10% है उसको क्यों फोकस किया जाता है. एक्चुअली एमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेशन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं, इसलिए वहाँ टर्नओवर भी अगर कम इंफ्रास्ट्रक्चर में कम मेन पावर में हम लोग अच्छा कर सकते हैं. इसलिए आरओसी को अगर देखें स्पेसिफिक वर्टिकल को तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है, इसलिए हम एमोनिया में करते हैं. और एमोनिया वर्टिकल में मार्जिन अभी कम है क्योंकि हम लोग नए प्लेयर हैं, 4-5 ईयर्स से हमने इस बिजनेस को शुरू किया है. तो एक बार रेफरेंस और रिपीट बिजनेस जब होता है तब हमें प्रीमियम मिलता है. तो हम ऐसा मानते हैं कि हम इनिशियल थोड़ा सा लो मार्जिन पे करके एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, तो इसलिए एमोनिया में 10% ग्रॉस मार्जिन में हम लोग काम करते हैं. और सोलर कोल्ड रूम जो है वो टेंडर बिजनेस ही है क्योंकि सोलर कोल्ड रूम कन्वेंशनल कोल्ड रूम से 3 टाइम कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए प्राइवेट कस्टमर को इन्वेस्ट नहीं करते हैं. टेंडर में गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है ग्रीन एनर्जी और ये सब, तो वो बिजनेस अपने कंट्रोल में नहीं है. कोई अफोर्ड या इनिशिएट लेने से बिजनेस बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेयरनेस प्रोडक्ट एजुकेटिंग करना पड़ता है डिपार्टमेंट को जाके, तो इसलिए वहाँ बिजनेस बढ़ने में टाइम लगेगा. आगे जाके वो मार्जिन तो ग्रॉस मार्जिन और प्रोडक्ट जितना ही देगा.
तो इसमें भी आपका ग्रॉस मार्जिन 10% ही रहेगा सोलर वाले में? सोलर वाले में वो 27 to 32% है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, कहीं थोड़ा सा भी का स्कोप होता है। टोटल सप्लाई वैल्यू में 5-7%। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुछ साइट के कॉस्ट भी है जो रेफ्रिजरेशन एक्सपर्टीज के बाहर के, वो कॉस्ट कम ज़्यादा होने के टाइम पे 25 भी हो सकता है, कभी 40% भी हो सकता है, अगर अच्छे प्राइस से टेंडर में हम लोग L1 हो गए तो। लेकिन वो 10% मार्जिन कैटेगरी वाली प्रोडक्ट नहीं है, वो रेगुलर मार्जिन वाली प्रोडक्ट है। समझ गया। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, आपके जो कंपेटिटर हैं जो ब्रॉडली टेम्परेचर बेस्ड वेयर हाउसेज पे ही काम करते हैं, उनका EBITDA मार्जिन है ब्रॉडली एट 24-25%, वेयर अपन अभी 8-9% पे है। तो वो लोग ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं, या हम लोग के पास भी वो वाला स्कोप है इवेंचुअली जाने का? तो ये थोड़ा सा समझा पाएंगे सर? एक्चुअली ऐसा तो हमारे नॉलेज में कोई कंपनी नहीं जो 20% EBITDA कोल्ड वेयर हाउस में काम करता है, क्योंकि हम लोग लिमिटेड प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, और सभी प्लेयर का मार्जिन स्ट्रक्चर हमारे नॉलेज में है, क्योंकि इसका प्रोक्योरमेंट प्राइस तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। कोई छोटे बिजनेस में अगर कोई किसी का EBITDA कम ज़्यादा हो गया, अगर तो 15 करोड़ के बिजनेस में वो पॉसिबल है, अगर 100 करोड़ 50 करोड़ के ऊपर कोई बिजनेस में नहीं। अगर है तो आप बाद में हमें इंटीमेट कीजिए कि इस कंपनी का बैलेंस शीट ये हो रहा है, तो हम लोग उस सेगमेंट हमारे ही रडार में नहीं है, तो हम लोग फोकस करेंगे। समझिए। और सर इसमें अपने पास ऑपरेटिंग लेवरेज का कोई एडवांटेज रहेगा क्या, और रहेगा तो वो कौन से स्केल पे आएगा EBITDA मार्जिन में? अभी हमारा मेन फोकस टॉप लाइन को इम्प्रूव करना है। अगर इसी टॉप लाइन के साथ मार्जिन इम्प्रूव करके आगे जाए तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अभी हम एग्रेसिवली टॉप लाइन और हमारी रीच बढ़ाएंगे, तो दैट इज अवर प्राइमरी स्ट्रेटेजी। उस हिसाब से आगे जाएंगे, और EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल अराउंड 8 से 9% की रेंज में भी मेंटेन करें, तो दैट विल बी फॉर अस, और उस स्ट्रेटेजी से हम अभी आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड। एंड वेयर इज द ऑर्डर बुक करेंटली अमाउंट? Maybe around 44 crores. Understood. Okay. Thank Pending you. order book is much. All the best. Thank you. Thank you. The next question is on the line of Nikhil Chaudhary from Chris PMS. Please go ahead. Yeah. Hi, sir. Thank you for the opportunity and congratulations on decent numbers. Sir, मेरे को 2 questions। मैं एक्चुअली जस्ट ऐसे ही एक स्कीम के सामने रीडिंग किया कि PM किसान संपदा योजना करके है, वेर गवर्नमेंट को कोल्ड फैसिलिटी, चेन फैसिलिटी बनाना है, जिधर गवर्नमेंट हमको 50% केपेक्स में हेल्प करता है। वो सब स्कीम्स में हमने कुछ एक्सप्लोर किया है सर? एक्चुअली वो स्कीम एक्सप्लोर करने के लिए आपका कोई वेंडर रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है वो लोग गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम में फॉल होते हैं और वो लोग लेके आते हैं। तो हमारी ओर से कुछ है नहीं, लेकिन हमारे कांटेक्ट में कई सारे गवर्नमेंट लाइजनिंग और जो बड़े प्रोजेक्ट का काम करते हैं वो लोग के साथ हम लोग कनेक्ट है। अंडरस्टूड। ओके, समझ गया। तो कस्टमर्स हम लोग का ये स्कीम यूज करते हैं। अंडरस्टूड। एंड सर, आपने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कंपटीशन का भी जस्ट थोड़ा बात किया, तो मेरे को आप एक्सप्लेन करते हो कौन से मेजर कॉम्पिटिटर है जिससे हम कम्पीट करते हैं, जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो हमारे जो पूरा इंडस्ट्री या हर एक प्रोडक्ट रेंज है उसमें कोई 100% कॉम्पिटिटर नहीं है, मगर अलग अलग वर्टिकल वाइज देखें तो जो ब्लू स्टार है जो कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल और कोल्ड रूम सेक्टर में काम करती है। वोल्टास है वो भी 3 सेक्टर के साथ एमोनिया में भी थोड़ा काम कर लेती है। कैरियर जो है वो कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फ्री ऑन बेस कोल्ड रूम का काम करती है। और बाकी जो है जैसे ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन है उसमें हमारी और मेजर जो 2 कंपनियां हैं और सुरक्षा है और एक सब जीरो करके। तो ऐसे अलग अलग वर्टिकल वाइज अलग अलग कॉम्पिटिटर है। 100% 5 वर्टिकल वाली कोई कंपनी नहीं है। समझा सर। सो मतलब जो प्रोडक्ट बास्केट हम लोग देते हैं वो प्रोबेबली किसी के पास भी नहीं रहेगा।
हाँ 100% एक कंपनी के साथ नहीं है। ओके ओके। एंड सर लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये समझना था कि मैंने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बातें ही सुना है, मेरे को ये सर कि ये प्रोडक्ट में कस्टमर कितना हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक बार प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो समझो कि मतलब इसमें प्राइस कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रोडक्ट में, मतलब ये सेक्टर में, कि कुछ और चीज़ देखते हैं कस्टमर्स और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबली क्या है जो प्रोबेबली कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एक्चुअली रिपीट कस्टमर आप फर्स्ट है। हेलो Ladies and gentlemen, the line for the management has got disconnected. Please stay connected while we reconnect the management. Ladies and gentlemen, thank you for patiently holding. We now have the line for the management reconnected. Over to you, sir. Sorry for the inconvenience. Chandrakant sir. हेलो, जो कस्टमर रिपीट होता है ना, वो आपके पहले प्रोडक्ट का क्वालिटी, सर्विस और आपने उनको जो सॉल्यूशन दिया है, जो परफेक्ट एक सही, एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट है वो कैटलॉग बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, एक सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये एक रिलेशन बिल्टअप करता है सर्विस से भी, और आप उनके एप्लीकेशन को सही सॉल्यूशन देते हैं तो कस्टमर रिपीट होता है। हमारा 50% बिजनेस जो है वो रिपीट कस्टमर बोले या कस्टमर के रिपीट रेफरेंस बोले तो हमारा काफ़ी बिजनेस है, हमारी स्ट्रेंथ भी है हमारे पुराने कस्टमर के रेफरेंस। समझा सर, समझा। सो दिस इज़ वेरी बहुत सुन के अच्छा लगा सर। Thank you so much, sir, and wish you all the best. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Zaki Mehta, an individual investor. Please go ahead. Yes, can you hear me, sir? You are audible. Congrats to Chandrakant bhai and the team of IceMate for such a strong performance in the first quarter, sir. If I understood right, sir, if the economic winds are in our favor, IceMate would, according to you, do a maximum top line of 300 crores with a 9% EBITDA. Is it right, sir? In terms of if all things going all right. That is my question number one, sir. Question number two is product specific in regard to solar peripherals. Sir, can this product be categorized also to stop the wastage, the large wastage of vegetables and fruits due to lack of transportation infrastructure from the farmers, and does this प्रोडक्ट फिट इनटू दैट कैटेगरी, और कैन ये प्रोडक्ट को आप लोग साइज में वेरी कर सकते हैं डिमांड को ध्यान में रखते हुए? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग कि इस साल में हमारे टॉप लाइन और मार्जिन कैसे रहेंगे। इन द बिगिनिंग हमने एस्टिमेट किया था मे बी अराउंड 250 करोड़ हम इस साल पोस्ट करेंगे, लेकिन Q1 की डिमांड और अभी की पेंडिंग ऑर्डर बुक है उससे लगता है मे बी अराउंड 270-275 दैट वी शुड क्रॉस, और अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो मे बी नियर 300 करोड़ भी हो सकता है। और EBITDA मार्जिन भी जो Q1 में था उससे स्लाइटली इम्प्रूव भी हो सकता है, या 8 से 9 की रेंज में हम उसको एक्सपेक्ट करें, वैसा हमें लगता है। मे बी स्लाइटली थोड़े से इम्प्रूव भी हो सकते हैं, बट इसी रेंज के आसपास रहेंगे। जी सर, जी सर। एंड अबाउट द प्रोडक्ट, जी आपने सोलर कोल्ड रूम के लिए बोला, फ्रूट वेजिटेबल वेस्टेज और साइज में, तो एक्चुअली काउंटर पार्ट जो है, जो मार्केट है, जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट साइड है, तो जनरली वहाँ पर एक फिक्स 5 मेट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज है। हम लोगों ने
2 मेट्रिक टन 10 मेट्रिक टन के भी 10 मेट्रिक टन को सप्लाई भी किया है, जो मैंने अभी मेरी स्पीच में भी बोला था। 2 मेट्रिक टन के भी कई टेंडर है, वो टेंडर में हमने बीड किया हुआ है। लेकिन ये प्रोडक्ट का इनिशियल कॉस्ट जो है ना, वो कन्वेंशनल के अगेंस्ट में 3 टाइम कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए मार्केट जो पीक होना चाहिए ना, प्राइवेट कस्टमर जब उसको हाथ लगाएगा तभी ये प्रोडक्ट नंबर्स में बन सकता है, या सोलर टेक्नोलॉजी आगे जाके नंबर्स बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाए तब हो सकता है। जी सर, बट ये प्रोडक्ट्स अभी जो ले रहे हैं वो कौन लेता है सर? फार्मर्स कोऑपरेटिव लेते हैं या फिर गवर्नमेंट से सेटअप एट दी फार्म लेवल? हर एक स्टेट के जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड होते हैं ना, वो लेते हैं। जैसा हमने झारखंड में अभी 10 नंबर सप्लाई किए हुए, एक गोवा में किए हुए, तो वहाँ भी यही लोग हैं। फ्रूट वेजिटेबल जो इनकी कोऑपरेटिव होती है, या तो एक विलेज FPO होते हैं, उनको गवर्नमेंट कोई स्कीम के अंदर में डोनेट करते हैं। और ज़्यादातर जो कस्टमर है या तो NGO है, या गवर्नमेंट है, या सेमी गवर्नमेंट है। सर, पर आपको लगता नहीं है लुकिंग एट द गवर्नमेंट का जो ध्यान आगे चलते हुए फार्मर्स के टुवर्ड्स फूड वेस्टेज स्टॉक करने के टुवर्ड्स जो बनता है, वो हिसाब से दिस प्रोडक्ट कैन बी अ रियल विनर सर? नहीं, वो लग सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमने लास्ट आगे भी बताया है कि सोलर कोल्ड रूम हमारी एक प्रोडक्ट लाइन में थी, मगर उसका जो मेन फोकस हमने लास्ट ईयर से चालू किया था कि हम उसको एक एग्रेसिवली वो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो 1 साल से करीबन 1 साल भी अभी नहीं हुआ जो हमने ये जो एग्रेसिवली काम चालू किया। तो अभी हमारे पास जो करीबन 32 कोल्ड रूम का हमारे पास जो ऑर्डर है, वो उसकी करीबन जो वैल्यू होगी वो 3.77 करोड़। तो वो देख के ऐसा लगता है कि अब वी आर ऑन द एक राइट ट्रैक। और गवर्नमेंट का भी एक जो फोकस है कि भी कोल्ड चेन सेक्टर को प्रमोट करे और जो सेल्फ लाइफ बढ़ाए, पेरिसेबल आइटम का वेस्टेज कम करे, तो आगे भी ऐसा ही हमें लगता है कि वो फ्रूटफुल रहेगा। और गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा भी जो FPO और NGO लेवल या कई सारे CSR एक्टिविटी के अंदर भी कभी बड़ी कंपनी रूरल एरिया में प्रमोट करती है, तो उसका मार्केट पोटेंशियल तो हमें अच्छा लगता है, मगर कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इतना एग्रेसिवली हमें नहीं परफॉर्म मिलेगा, मगर हम अच्छा कर पाएंगे, वैसा हमें कॉन्फिडेंस है। जी, थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर द ईयर सर। थैंक यू। Thank you. Thank you. The next question is from the line of Arvind Kothari from Nivshay Investment Advisory. Please go ahead. Congratulations on an excellent set of numbers, sir. सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम रन रेट देखें, अगर जो हमने इस बार जून क्वार्टर में करी है, इट्स ऑलमोस्ट डबल जो हम पहले करते थे। तो अमोनिया के अलावा व्हाट एग्जैक्टली अदर थिंग्स हैव चेंज जो हमारे सेल्स मिक्स में इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट करिए? बिकॉज जनरली Q1 हमारा वीकेस्ट क्वार्टर रहता है, धीरे धीरे हम Q2, Q3, Q4 ऐसे पिकअप करते हैं। और अगर हम ये सेम मोमेंटम कैरी करें तो क्या एक मार्च क्वार्टर अलोन में वी कैन डू 90-95 crores ऑफ turnover with this run rate going forward? मार्च क्वार्टर में 90-95 करना मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी का भी थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन अगले साल भी हमने 72 करोड़ तो किया था, तो 90 करोड़ मे बी पॉसिबल है, अगर एडवांस में ऑर्डर अगर है हमारे हाथ में, नवंबर दिसंबर से ऑर्डर है, और तो हम लास्ट क्वार्टर में 90 कर सकते हैं। ओके सर, ये क्वार्टर में कुछ स्पिल ओवर था पिछले क्वार्टर का, कुछ ऑर्डर जो हमने इस क्वार्टर में कंप्लीट किया, या ये मतलब ये वाली रन रेट को क्या हम बेस बना सकते हैं आने वाले सालों के लिए? हाँ, बना सकते हैं। ऐसा कोई पुराने ऑर्डर डिस्पैच किए ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हमारे ई-कॉमर्स के जो नया सेगमेंट है, शायद फर्स्ट क्वार्टर में 9-10 करोड़, तो उसी से टॉप लाइन सपोर्ट मिला था। और ई-कॉमर्स का फ्यूचर तो आप भी जानते हैं कि आगे जाके और अच्छा है। हमारे ई-कॉमर्स के जो अपने कंट्री के जो लीडर है, वो सभी ई-कॉमर्स कंपनी से हम लोग काम करते हैं, और उन सबका भी आगे का जो नंबर्स है, जो प्रोजेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
गॉट इट, क्वार्टर ऑन गॉट इट, क्वार्टर को जो बुकिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर की और अभी इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके बुकिंग में भी पहले 36 करोड़ का Q1 में बुकिंग था और अभी 66 का हमारा बुकिंग हुआ है, तो उसमें भी 83% की बढ़ोतरी है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले वाले ऑर्डर्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, नेचुरली ही अभी डिमांड बढ़ी हुई है। फैंटास्टिक सर। द दूसरा जो मार्जिन्स अपने अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत मटेरियल कॉस्ट में भी अब तो कूल ऑफ होने के शायद थोड़ी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, एंड एम्प्लॉय कॉस्ट क्या हमने हायरिंग करी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ जिस वजह से थोड़ा बड़ा है एज अ परसेंटेज, या फिर क्योंकि जनरली ये क्वार्टर में सेल्स ही कम रहती है इसलिए एज अ परसेंटेज एम्प्लॉय कॉस्ट हैज गॉन अप? नहीं, अगर आप आई थिंक आप मार्च क्वार्टर और ये जून क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। मार्च क्वार्टर में ऐसा था कि हमारे R&D में भी जो कुछ एक बंदे हैं उनकी कॉस्ट भी पूरे साल की हमने R&D में वैसे ट्रांसफ़र की हुई थी, तो वो पूरे साल में नहीं, पर उसकी इफेक्ट सिंपल एक क्वार्टर में आई हुई है। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर का कंपैरिजन ऐसा लग रहा है, लेकिन आप पूरे साल का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वन एंट्री आप उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा। और आपने मार्जिन वाला पूछा था कि अभी मेटल प्राइसेस अभी कूल डाउन हुआ है, तो वो हमारे लिए तो फेवरेबल है। हमें लगता है उससे हमारे मार्जिन स्लाइटली बेटर ही होंगे, क्योंकि जब बढ़ा था तो हमने मतलब इमीडिएटली हम प्राइस हाइक नहीं कर पाए थे। 2 और 3 बार किया था, लेकिन जैसे रिडक्शन आता है तो वो इमीडिएटली पास ऑन भी नहीं होता है, तो उसका हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। बट हमें टॉप लाइन भी बढ़ानी है, ऑर्डर्स भी थोड़े से कैटर करने हैं। हो सकता है हम स्लाइटली पास ऑन भी करें, पर मार्जिन हो सकता है इससे स्लाइटली बेटर हो, 8.5-9 के बीच में भी हो सकता है EBITDA मार्जिन। ओके ओके ओके। एंड सर मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा बिजनेस के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि जैसे पहले हम लोग ज़्यादा SKUs केटर करते थे, कुछ छोटे छोटे SKUs भी केटर करते थे। ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स हमने कितने SKUs बंद किए होंगे और स्केलेबल SKUs पे ज़्यादा फोकस किया होगा, और इसी से मतलब फ्यूचर में अगर मैं अपनी कंपनी का रेवेन्यू देखने की ट्राई करूं या एक एस्टिमेट करूं कि 5 साल में या 7-8 साल में इस बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर उस पर आप डिवीजन वाइज अपना कुछ कमेंट्री दें कि मे बी इसमें कितना परसेंट किस में अपना मार्केट शेयर रख पाएगा और वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ओवरऑल मार्केट में, कैन वी डू 1000 करोड़ टर्नओवर बाय व्हाट ईयर, इस तरह का अगर कुछ आप एनालिसिस दे पाएँ तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। SKUs आई मीन टू से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हाउ? सो जैसे मे बी हम पहले 60 प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाते थे फॉर डेयरी, मान लो एक कर्ड के मैन्युफैक्चरिंग मशीन या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी हम देते थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाते थे। तो आई गेस जब पहले कंपनी का IPO आया था तब SKUs काफ़ी ज़्यादा थे, तो तब से लेके अब तक हमने मान लो वी एडेड अमोनिया जिसमें स्केलेबिलिटी दिख रही है, या दूसरे वर्टिकल जहाँ पे हमको स्केलेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, मान लो सोलर कोल्ड रूम्स में, तो क्या हमने कुछ SKUs कम किए हैं, कट डाउन किए हैं, नंबर ऑफ SKUs सेम है, या फिर हम स्केलेबिलिटी अगर हमारी कंपनी की देखें गोइंग फॉरवर्ड तो कौन से डिवीजन से अगर कोई बंदा आपका बिजनेस समझना चाह रहा है तो वहाँ पे वो फोकस करे, समझे, तो उसको ज़्यादा आइडिया आएगा कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज वेयर ग्रोथ कैन कम इन द कंपनी। जो पहले बात करें कि SKU कम करने की बात है, जो SKU ऐसे कोई कम नहीं किए, मगर ज़्यादातर जो स्मॉल आइटम्स हैं, स्मॉल प्रोडक्ट थी जो 25-30 हज़ार के आजू बाजू में जो हम पहले बनाते थे, वो तो हमसे पिछले 3-4 साल से उसका बिजनेस ओवरऑल कम ही है और डायरेक्ट बिजनेस वो हम नहीं कर रहे। तो वो SKU अगर उसको बोले तो वो थोड़े नंबर्स कम हुए हैं, मगर हमारा फोकस बड़े प्रोजेक्ट की और ही है, ऐसा नहीं है। मगर इन बिटवीन ओवरऑल जैसे जैसे हर साल एक हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं या कुछ नया टर्की सॉल्यूशन देते हैं, तो ये नेचुरल है कि अगर टर्की सॉल्यूशन में जाए तो एक प्रोजेक्ट साइज बढ़ेगी और हमारा ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ेगी। वेरी गुड। वो हिसाब से जो रेवेन्यू के चांसेस है वो वही सेक्टर से ज़्यादा आने का चांसेस है। और एमोनिया की बात करें तो एमोनिया का जो एक नॉर्मल टिकट साइज होता है 40 या 50 लाख से ऊपर ही उसका प्रोजेक्ट होता है मिनिमम, जो स्टार्टअप खुले तो वही हमारा जो फोकस है, तो वो हिसाब से तो वही ग्रोइंग सेक्टर में रहेगा। जैसे हमारे पिछले 3-4 साल के जो ऑर्डर्स या जो हमारा बिजनेस हुआ है
तो एमोनिया में भी आगे जाके और आज की तारीख में जो हमारे ऑर्डर्स हाथ पे है, तो हमें लगता है कि इस साल भी हम शायद 30 करोड़ के आजू बाजू एमोनिया को बिजनेस का अचीव कर सकेंगे। बाकी टर्की सॉल्यूशन जो देते हैं, डेयरी प्रोजेक्ट है, और बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो कंटिन्यू है। बड़े इसके अलावा हम लोग ई कॉमर्स भी, जब से ये कोरोना हुआ ना, तो कोरोना आने के बाद पता था कि भी ई कॉमर्स का आगे फ्यूचर अच्छा है, तब से हम लोगों ने ई कॉमर्स कंपनी को अप्रोच किया था, और अभी हमारे टॉप लाइन में उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमारे कई सारे जो एसक्यू कम करने की जगह पर सेम एसक्यू सेम प्रोडक्ट में हम लोग जो कैपेसिटी का एक बॉटलनेक था, उसको हम लोगों ने हायर कैपेसिटी में जाके उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, उसको एग्रेसिव मार्केटिंग करने की कोशिश की। तो एवरेज ऑर्डर साइज है ना, हम आपको बाद में दे सकते हैं हमारे पास। और ईच प्रोडक्ट मतलब वर्टिकल वाइज एक एवरेज ऑर्डर साइज भी है, जिससे आपको एक अंदाजा आएगा कि हाँ, हम लोग जैसे हमारा ये कॉल रूम बिजनेस जो है, मतलब 50% मार्केट से टॉप लाइन का 50% शेयर है, वो 3 to 4.5 लाख के आसपास का एक एवरेज ऑर्डर होता है। कमर्शियल में 50 to 75,000 है, जो जिसमें हम लोगों ने छोटी प्रोडक्ट जो बिलो 50,000 है, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि एक यूनिट के पीछे इतना ही आपका टाइम इन्वेस्ट होता है सर्विस में, सेल्स में, तो उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा कम किया हुआ है। लेकिन मार्जिन वाइज देखें तो वो प्रोडक्ट में थोड़ा बेटर मार्जिन है, इसलिए उनको एक जो रेफरेंस एक रॉयल्टी फॉर्म में बिजनेस आते हैं, उसको हम लोग कर भी रहे, और समय समय पे उस मार्केट को हम लोग वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो हम लोग मिस नहीं करें। इसके बाद रिफर वैन में भी हम लोग 3 to 3.5 लाख के आसपास एवरेज ऑर्डर साइज है। इंडस्ट्रियल में भी ऐसा ही है, 2.5 to 3.5 एवरेज ऑर्डर। तो कमर्शियल को छोड़ के बाकी सबका एवरेज ऑर्डर साइज सेम है। एमोनिया एक अलग ही केस है, उसमें 50 लाख, 1 करोड़ और 15 करोड़, वो ऑर्डर का कोई एवरेज निकालना मुश्किल है। लेकिन छोटे प्रोडक्ट को साथ में रख के हमने बड़े प्रोडक्ट में भी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो यूटिलाइजेशन है, उसको भी हमें बैलेंस करना है कि भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एवरेज यूज कर ले, तो प्रोडक्ट को ऐसे भी फोकस होता है। गॉट इट सर, गॉट इट। तो सर जो ई कॉम वाला सेगमेंट है, वहाँ पे आई मीन व्हाट सो बेसिकली सर्विसेज वी विल बी प्रोवाइडिंग, हमारा कोल्ड रूम हो गया, मे बी उनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए तो हमने वो भी प्रोवाइड कर दिया। तो जो हमको ये ऑर्डर इंक्वायरीज आ रही है, ये सेंट्रल किचन बनाने के लिए, मान लो अगर रेस्टोरेंट सेक्टर से आ रही है, या स्टोर कोल्ड रूम बनाने के लिए वेयर हाउसेज से आ रही है, ओवरऑल क्या क्या डिवीजन से अपने को इंक्वायरी आ रही है, एंड इसका हम पोटेंशियल क्या देखते हैं? क्या ये मतलब एनुअल बेसिस पे 100 करोड़ का, 200 करोड़ का धंधा बन सकता है आने वाले 5-7 साल में? या ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि अगर मैं देखूं आइसमेक 1000 करोड़ का टर्नओवर करना चाहती है, तो आप कौन से वर्टिकल्स पे ज़्यादा बुलिश रहेंगे? क्या वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, या फिर वो अमोनिया आपके कोल्ड रूम्स रहेंगे, या फिर अपने जो बेसिक कोल्ड रूम, स्टैंडर्ड कोल्ड रूम्स हम बनाते हैं वो रहेंगे? और वो कितने साल में हम अचीव कर सकते हैं, ऐसी अगर हमको कोई सेंस अगर आप दे पाएँ। नहीं, आप जो बोल रहे हो टॉप लाइन प्रोजेक्शन की बात करते हैं, वो थोड़ा सा लंबा है। हम लोग अगर 30%, 35% के अगर एवरेज टॉप लाइन ग्रोथ से कोई बड़े कैपेक्स के बिगर करे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 6-7 साल के बाद हम लोग शायद 700-800 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं है कि भाई आप सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम प्रोडक्ट बास्केट में आगे बढ़ सकते। कोई बिजनेस ऐसा है ही नहीं जो आप अपने हिसाब से आप लिमिट में रह के कर पाओ। हम लोग भी नया कैपेक्स और ये ज़रूरत पड़ने पर हम करेंगे। हमें भी कई सारी प्रोडक्ट दिखती है कि कुछ ये प्रोडक्ट में अगर काम किया जाए तो अच्छा एक बिजनेस टॉप लाइन बना सकते हैं। 2 साल कोरोना के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे, कोई नया प्रोजेक्शन और नया एक्सपेंशन रोक के रखा था। तो अब इस सब के ऊपर काम चल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो 1000 करोड़ करना है, अगर थोड़ा सा और अगले 2-3 साल में ठीक से कैपेक्स करे तो मुश्किल नहीं है 5-1 साल में 1000 करोड़ पहुंचाना।
गॉट इट सर। थैंक यू सो मच सर। मैं क्यू में वापस से आता हूँ। थैंक यू। Thank you. The next question is on the line of Chinmay Shah, an individual investor. Please go ahead. Can you hear me now? Yes, आवाज आ I रही can है? hear you. हाँ तो सर हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं अभी उसमें ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस वाला भी ऑप्शन होता है या वो हम नहीं करते? नहीं, उसमें ऑप्शन होता है। जो आप सर्विस की बात करें, आप वारंटी की बात की, ऑपरेशन और हाँ मेंटेनेंस, राइट। वो ऑप्शन होता है, मगर उसमें क्या है कि हमारे लिए वो मैनुअल है सिस्टम, तो उस हिसाब से मैन पावर, स्किल मैन पावर और बड़ा नेटवर्क चाहिए, जिसके लिए जो उनकी रेवेन्यू मिलने का चांसेस है, उससे कॉस्ट को भी ध्यान में रखते करे तो लॉन्ग टर्म इतना नेटवर्क के हिसाब से बेनिफिशियरी नहीं लगा। तो हमारा इसलिए वो फोकस अभी रेवेन्यू की साइड नहीं रखा है हमने वो एरिया में। Okay, understood. That's all from my side. Thank you. Thank you. A reminder to the participants, anyone wishing to ask a question, may please press star and 1. The next question is on the line of Alisha Mahawla from Envision Capital. Please go ahead. Hi sir, good evening. Thank you for taking my question. सर पहले ये समझना था कि करंट कैपेसिटी कितनी है? अभी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड 300-325 करोड़ के आसपास का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अभी एग्जिस्टिंग कितनी यूटिलाइज हो रही है, मे बी अराउंड 70% है, पर वो एग्जैक्ट इसमें शिफ्ट हम बढ़ा के थोड़ा सा, मतलब डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और वैसे करके थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अराउंड 300 से 350 करोड़ का हम इससे टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से। तो हम कुछ केपेक्स करने का प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगले साल की ग्रोथ के लिए? हाँ, कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लानिंग चल रहा है। हम लोग प्रोडक्ट एरिया सब देख रहे हैं। अगले 2-3 महीने में हम लोग बताएंगे कि हम क्या करेंगे आगे। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा है 350 करोड़ 325 करोड़ अंकित भाई ने बताया, लेकिन एमोनिया वर्टिकल जो है अभी करंट में 30 करोड़ है, या आगे जाके वो 50 हो सकता है। तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, तो उसको कैपेसिटी से बाहर रहेगा ये प्रोडक्ट। ऐसे कई और प्रोडक्ट है जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड है, उसमें यही इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर स्ट्रेच करें तो 450 करोड़ तक भी हम लोग कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट अलग टाइप का फोकस किया जाए तो समय मिलने पे जब उसका 100% कैपेसिटी आ जाएगा तो हम लोग टॉप लाइन को और बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट फोकस थोड़ा बदल के हम कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके ना, अगर ज़्यादा अमोनिया और ज़्यादा कमर्शियल रेफ करेंगे जो ज़्यादा वैल्यू वाली प्रोडक्ट है, तो बोल रहे तो आप 400 तक जा सकते हो। जी जी ठीक है। और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन जो प्लान में है, ये ब्राउन फील्ड होगी या ग्रीन फील्ड होगी? मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में जगह है बढ़ाने के लिए? नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग है उसमें तो जगह है, मगर वो बहुत छोटे स्केल पर रहेगा, वो भी हमारे प्लानिंग में है, मगर जो बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा वो ग्रीनफील्ड लेवल से ही होगा। अच्छा, ठीक है। और आपने ऑर्डर बुक कितना बताया? 40-45 करोड़? या ओके, तो ये ऑर्डर बुक कितना एक क्वार्टर के अंदर होता है, या क्योंकि आपको पूरे साल का रेवेन्यू टारगेट 250-300 करोड़ है, तो ये ऑर्डर बुक के हिसाब से, तो इसलिए आप अगर इसे थोड़ा समझा दें। नहीं, नॉर्मली हमारा जो साइकिल है वो 20 से 22 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग होता है पर मंथ देखे तो, और अभी का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो भी वही ट्रेंड रहा है और आगे जाके भी वही कंटिन्यू लगता है, तो वही हिसाब से इट विल बी 250 प्लस। और अभी जो ऑर्डर ऑन हैंड है वो करीबन हमारी जो ऑर्डर साइकिल है वो 21 दिन से 45 डेज के बीच में होती है। अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो वो थोड़ा स्पान बढ़ जाता है, अदरवाइज नॉर्मल 3 वीक से 6 वीक या 8 वीक में हो जाता है। ओके। और करेंटली हमें ये जो डिमांड दिख रही है, ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट या कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए है, या अक्रॉस द बोर्ड है? मतलब ऐसा है कि कुछ फार्मा से ज़्यादा है इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस है, या कमर्शियल रेफ में, या कोई ऐसे सेगमेंट से ज़्यादा हमको डिमांड दिख रहा है?
नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो हर एक सेगमेंट में ग्रोथ दिख रहा है और वहाँ से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं सभी सेक्टर से, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो ओवरऑल इकोनॉमिकल सिचुएशन थी कोरोना की वजह से, तो कई सारे कैपेक्स जो लोग ने नहीं किया था वो अभी आप वो एक्सपेंशन कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट नया लगा रहे, तो एक ओवरऑल कोल्ड चेन सेक्टर में देखा जाए आइसक्रीम और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री 2 साल से बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये इंडस्ट्री भी अभी ग्रो कर रही है। तो वैसे पर्टिकुलर कोई सेगमेंट वाइज या कोई वर्टिकल वाइज नहीं, मगर हमें लगता है कि हर एक वर्टिकल में ग्रोथ है। और एक लास्ट सवाल था, हमारा सारा रेवेन्यू डोमेस्टिक से ही है? नहीं, हमारा एक्सपोर्ट भी है। हमने पिछले साल 14 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। और आगे जाके कोई टारगेट है एक्सपोर्ट कितना? इस साल का में भी अराउंड 18 से लेके 20 करोड़ के आसपास का इस साल हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट का। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Nilesh Mehta from NSR. Please go ahead. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, मुझे जानना था कि अपना डेट सिचुएशन क्या है एज ऑन टुडे? अभी हमारी वर्किंग कैपिटल की सैंक्शन लिमिट 25 करोड़ है। एवरेज यूटिलाइजेशन 10 से 12 करोड़ के आसपास है और एक टर्म लोन है जिसकी 3 करोड़ की हमने पहले ली थी, लेकिन अभी की जो आउटस्टैंडिंग है वो मे बी अराउंड 1.2 करोड़ के आसपास है, 1.25 करोड़। कोई ज़्यादा डेट नहीं है। अच्छा जी। सर, ये जानना था मुझे कि हमने जो अपना एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर्स यूजुअली हैं अपने जो, उसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्डर्स में बाइफर्केशन कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं होते, 44 करोड़ के ऑर्डर में गवर्नमेंट 10% है वो गवर्नमेंट टेंडर से जो आया हुआ बिजनेस है, वो 90% बिजनेस वो प्राइवेट है। प्राइवेट में एक्सपोर्ट के भी बिजनेस आ जाते हैं। तो यूजुअली ये अपना जो वर्किंग डे साइकिल होता है कितना टाइम का होता है यूजुअली इन प्राइवेट? 6 टाइम हम बोल सकते हैं। साल में 6 बार हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल घूम जाता है। हमारे ज़्यादातर बिजनेस हमारा डायरेक्ट है। 30% हमारा बिजनेस डीलर से आता है जिनको हम अराउंड 30 से लेके 45 डेज के आसपास की क्रेडिट देते हैं, और जो 60% 65% जो हमारा डायरेक्ट बिजनेस है उस कस्टमर से हम एडवांस लेके काम करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रोडक्ट है। तो बिफोर डिस्पैच हमारा 80-90% का पैसे आ जाते हैं और हार्डली 5-10% के आसपास के जो है वो आफ्टर इंस्टॉलेशन है। तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में हमारा कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है। तो ऐसा कोई, हमारी वर्किंग कैपिटल भी 25 करोड़ हमने जो रखी हुई है वो भी हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते, और अभी के एडवांस हमारे अराउंड 13-14 करोड़ के आसपास के हैं कस्टमर एडवांस। तो हम अगर लिस्टेड या अनलिस्टेड प्लेयर्स में देखें तो अपना इमीडिएट कॉम्पिटिटर किसको बोलेंगे आप? वैसे पीयर टू पीयर हम बात करें तो हमारी कंपनी जो 5 वर्टिकल में काम करती है, तो हर 5 वर्टिकल में कोई हमें कम्पीट करे वैसी कोई सिंगल कंपनी नहीं है। लेकिन वर्टिकल वाइज जैसे देखे, ब्लू स्टार, वोल्टास और करियर है, उनका ज़्यादातर फोकस कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कोल्ड रूम में है, तो वो हमें उसमें कम्पीट करती है। फिर सुरक्षा और सब जीरो करके है, वो ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में हमें कम्पीट करती है। फिर एक रीनेक करके है जो ट्रांसपोर्ट एमोनिया, इंडस्ट्रियल और फ्री ऑन कोल्ड रूम में हमें कम्पीट करती है। फिर सीरप करके है, वो हमें कमर्शियल में कम्पीट करती है। फिर IDMC है, वो भी कमर्शियल में है। डाइकिन और पैनासोनिक भी है अभी, जो कमर्शियल और कोल्ड रूम सेक्टर में हमें कम्पीट करते हैं। और कुछ एक रीजनल या लोकल प्लेयर्स बोल सकते हैं। अच्छा जी। सर, जब हम लोग ये ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड की बात करेंगे तो हमारा कुछ डेट रेज करने का प्लान है इन द नेक्स्ट 1 or 2 ईयर? वैसे हमने हमारे अभी कंसिडरेशन में है, हमने कुछ फाइनलाइज किया नहीं है कि कैसे हम रेज करेंगे।
उसके ऊपर गवर्नमेंट की कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। अभी उसको हमने फाइनलाइज नहीं किया है। एक बार हम अपना कॉस्ट फिजिबिलिटी और उसका जो लेआउट करेंगे उसके बाद में हम वो पब्लिश करेंगे या हम आपको बता पाएंगे कि किस हिसाब से आगे जाएंगे। पर वो जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट में भी अराउंड 30-35 करोड़ होंगी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is on the line of Vishal Darzi from IceMake. Please go ahead. हेलो सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम आइसमेक सर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में सर। थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ ये जी बताइए। हाँ जी, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि हमारा जो बिजनेस के जो सेगमेंट है उसमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप चाहिए था कि भाई जैसे 5 वर्टिकल बताए तो वर्टिकल वाइज क्या मुझे जानकारी मिल सकती है ब्रेकअप। और दूसरा सवाल कि स्टेट वाइज, जैसे हम गुजरात बेस्ड कंपनी है तो गुजरात में से, फिर महाराष्ट्र में से, राजस्थान में से, तो स्टेट वाइज ब्रेकअप थोड़ा नियर बाय, एग्जैक्ट तो नहीं मिल सकता शायद, तो मगर मिल सकता है। हाँ, स्टेट वाइज भी हमारे पास ब्रेकअप होगा। हम आपको जोन वाइज हम आपको बता पाएंगे कि किस हिसाब से हमारा रेवेन्यू है। वेस्ट जोन में हमारा नियरली 60% रेवेन्यू आता है, उसमें गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी कवर होता है, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू है इन 4 स्टेट से है। फिर ईस्ट जोन में हमारा अराउंड 10 से लेके 15% के आसपास का रेवेन्यू है जो हमारा ईस्ट से आता है। फिर नॉर्थ साइड पे देखें तो मे बी अराउंड 7 से लेके 10% के आसपास का रेवेन्यू है। साउथ में हमारा 10-12% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। और कुछ एक नेशनल डीलर है कि जिनका सेल पूरे इंडिया में होता है, उसका भी शेयर में भी अराउंड 4 to 5% है। ओके, ये क्यों पूछना था सर कि जैसे साउथ में चेन्नई इज द बिगेस्ट मार्केट, जैसे वो है, बेंगलुरु है, तो वहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 7 to 10% है। तो वहाँ पे हम जैसे बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ इंडिया मेट्रोस पकड़ के एक बार चलते हैं कमर्शियल के लिए, तो उसमें हम एंटर करने के लिए और वो मार्केट कैच करने के लिए हम कैसे ट्राई कर रहे हैं सर? एक्चुअली ये बिजनेस जो सर्विस सपोर्ट और ये लगता है बिजनेस में, ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो पीछे आपका बैकएंड में सर्विस सपोर्ट होना चाहिए। वेस्ट में कंपनी पहले से है तो यहाँ पर वो नेटवर्क और स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हम लोग और रीजन में, जैसा हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट और साउथ को काफ़ी फोकस किया हुआ है। ये 7-10% भी जब हम लोग 40% टॉप लाइन ग्रोथ के साथ करते तो तब भी हमने अगले सालों के कंपैरिजन में ये दोनों रीजन में हमने 2-3% टॉप लाइन बढ़ाया हुआ है। अगर ऐसे देखा जाए कि साउथ के अगले साल का रेवेन्यू और करंट ईयर का रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास होगा। तो फोकस है हमारा, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी लिमिटेशन है। आपका लैंडिंग कॉस्ट कस्टमर के लिए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के बाद ही देखा जाएगा ना। तो हमारी चेन्नई फैसिलिटी पिछले 5 साल से हमने एक सब्सिडरी टेक ओवर किया था, 2 साल कोरोना आने से, और साइज छोटा है, उसमें थोड़ा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए हम लोग वहाँ उसकी फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो साउथ हमारे लिस्ट में है और हम आगे जाके उसको, उस मार्केट को, जो मेट्रो मार्केट है वहाँ के 3 बड़े सिटी, उसको फोकस करेंगे। और जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसका पिछले 3 साल का जैसे आपने बताया तो 3 years डाउन पहले 6 करोड़ का टर्नओवर था, फिर इंक्रीज होके 8 करोड़ के आसपास हुआ और पिछले साल 14.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो वो चेन्नई की कंपनी का अभी मैंने आपको इसमें मर्ज करके नहीं बताया हुआ है। तो इस साल भी हमें लगता है अराउंड 17 करोड़ से लेके 20 करोड़ का बिजनेस वहाँ पे भी हो सकता है। और वहाँ पे भी अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे आइसमेक में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का जो इशू है वो कोल्ड रूम सेक्टर में या दूसरे प्रोडक्ट में हम वहाँ से कैटर कर पाएंगे। तो वो कंपनी भी अच्छी पेज से ग्रो हो रही है। तो साउथ में हमारी कंपनी की वजह से हमारी प्रेजेंस भी है और सर्विस सपोर्ट भी हम उनको दे पाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है साउथ के स्टेट्स को भी हम अपनी
सब्सिडरी से अच्छे से कैटर कर पाएंगे। Okay. Okay. This is from my side. Thank you so much and congratulations, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the last question. I now hand the conference over to the management for their closing comments. Good afternoon, everyone. On behalf of IceMake Refrigeration Limited, I, Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer of the company, would like to thank you for attending the conference call. Have a nice day ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of IceMake Refrigeration Limited, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank